Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403, today's lecture number 15. And I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of our previous lecture. Okay, in our previous lecture, we have talked about human resource planning. Now, what is human resource planning? What comes in your mind when we talk about human resource planning? Now, human resource planning starts with strategic planning. Strategic planning means that the long-term planning. Now, under the umbrella of strategic planning, we do that human resource planning. So, in human resource planning, what we basically do is we compare the existing HR availability with the required HR, जो हमारी requirements हैं. So we compare the existing strength of employees with the required strength of employees. We compare, and when we compare, there are three possibilities. Those three possibilities are, like for example, if 100 employees are working in an organization, and for example, if 100 are required, so no action is needed. In another case, for example, 100 employees are working at present in an organization, and on the other side, we need 120 employees. So if there is a requirement of 120 employees, so there is a difference of 20 employees. So we need to go and recruit and select 20 employees for our organization. The third possibility is, like for example, 100 employees are working in an organization, whereas only 80 employees are required. So in this case, what we do is, first of all, we restrict hiring. We go for downsizing options. We reduce the number of hours, working hours, and we go for layoffs, things like that. So with the help of efficient and effective human resource planning, we ensure that whenever we are in need of human resources, they are there available to perform the different activities of the organization. In human resource planning, we have talked about different methods that how to forecast HR needs. Like for example, we have talked about, like one of the popular method is Delphi technique. Now, what we do in Delphi technique is, we have a group of experts and they discuss, and then after thorough discussions, they come up with certain recommendations for different departments of an organization. So on the basis of those recommendations, the organization takes decision whether to recruit people or not, or like in which department, how many people they need to recruit and select. Another popular method is, like for example, we go for ratio analysis, like for example, unit produced per employee. So like for example, if an organization is involved in a business where they need to deliver certain products and provide certain services. So for example, if you're talking about the products, so we calculate that, like for example, how many units one employee can produce. So in order to produce, like for example, in the same example, for example, one employee can produce 100 units per month. So if we have a order to provide 1 million units. So what we need to do is, we need to just measure the ratio, like 1 to 10, and then 1 to 100. So we measure the ratio, and of course, we can easily calculate that in order to produce 1 million units, how many employees are required to be hired by an organization. So in our previous lecture, we have talked in depth about human resource planning. So today we are going to talk about human resource retention. And here I would like to re-emphasize that in development planning and administration, of course, human resource planning and human resource retention, both are really very important. First of all, you need to plan for your human resources. And once you
recruit and select employees, you need to retain them. You need to keep the best employees with you. And let's have a very thorough discussion, deep discussion on human resource retention and what human resource retention has a link or relationship with development planning and administration. Now our asset walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. Now this is very interesting. Okay, like for example ऑफिस में आप का एक like for example एक exit door है और आपके जो employees हैं, जो आपके like for example wonderful best employees हैं, when they walk out of that door, जब वो उस door से exit कर जाते हैं, so we have to make sure कि next morning में आपके human resource जो हैं they return. Now in order to ensure that, of course, organizations needs to take certain steps. तो किसी भी organization के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे employee की like for example take care की जाए, उनको facilitate किया जाए, उनको comfort दी जाए, उनके लिए एक flexible supportive environment create किया जाए, एक highly motivating rewarding environment create किया जाए, ताकि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है ना सिर्फ ये कि वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्व करने को अपने लिए एक ऑनर फील करे, बल्कि उसके साथ साथ उसकी लॉयल्टी स्ट्रेंथन हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हर वक्त तैयार हो. सो आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम अपने इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस को कैसे हम इन्हांस करें, उनको कैसे मोटिवेट करें और हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह इतना मोटिवेट करें कि वो वी कीप आवर एम्प्लॉयज़ विद अस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डोंट लीव अस. Now, human resource critical findings. 1 out of every 3 people plan on leaving in the next 2 years, according to Hay Group, USA. Now, what does it mean? हर 3 लोगों में से 2 लोग they are planning in any organization in the next 2 years. Now, this thing is really, very sensitive. Because this is what happens in most of the organization. Now these employees, they are waiting for and they are looking for any better opportunity, and once they get some better opportunity in some other organization, they leave. So we need to make sure that कि हमारे जो employees हैं they don't leave us and they remain with us and they keep on doing the best in our organization. So this factor is really very important because this Hay Group finding in USA really emphasizes that employee retention is so important, because if we do not work on it seriously, we cannot ensure that we retain our best employees in the organization. Now it costs much more to replace employees than to keep them. एक रिसर्च हुई कि जो आप एक नया एम्प्लॉय जब हायर करते हैं तो इट कॉस्ट यू 5 to 10 times more than to keep the existing employee. कि अगर एक एम्प्लॉय को कीप करने के लिए आपके 1000 रुपीज खर्च हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो नया एम्प्लॉय हायर करने के लिए लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके 5 से 10 हज़ार रुपये आपके spent हो रहे हैं. So now you see that कि 5 to 10 times cost is higher, क्योंकि जब आप नया एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, फिर आपने उनको रिक्रूट किया, फिर सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने डेफिनेटली उनको आपने ट्रेनिंग्स दी. ट्रेनिंग्स देने के बाद जारी बात है कि उनको ऑन द जॉब आपने ट्रेनिंग्स दी, मे बी उनको ऑफ द जॉब आपने ट्रेनिंग्स दी, और तमाम जब उनकी स्किल एक्सपर्टीज इस काबिल हो चुकी है कि दे हैव रियली बिकम एन एसेट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रियली डूइंग द बेस्ट, और वो एम्प्लॉइज अगर आपको छोड़ के चले जाते हैं एंड देन यू रीस्टार्ट, आप दोबारा से वही प्रोसेस कर रहे हैं,
आपने दोबारा से हायरिंग की, दोबारा से उन एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेन किया, आपने उनको ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स दी, यू नो, तो व्हाट हैपेंस दैट कि वो जो बीच का पीरियड है डेफिनेटली एक गैप आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ जब आप हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको आप फिर उनसे काम लेते हैं, तो आप जब आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे ट्रेनिंग लेके फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो डेफिनेटली नए एम्प्लॉयज़ आने में, उनको हायर करने में, उनको ट्रेनिंग देने में टेक्स टाइम, नंबर वन। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, नंबर वन। Number two thing is, of course, it bears a lot of cost because आप एम्प्लॉयज़ को जब हायर करते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो इन तमाम फैक्टर्स को जब सामने रखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्किंग करें, आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उनको मोटिवेट करें। तो आज के लेक्चर में हमने यही बात करनी है कि हमने ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन क्यों करनी है, कैसे करनी है, व्हाट आर द चैलेंजेस, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर की जब हम बात करते हैं इन ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर इज द रेट एट विच एन एम्प्लॉयर गेन्स एंड लूजेस एम्प्लॉयज, कि जो एम्प्लॉयर है उसमें उसके पास जो एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो जो रेट है उस रेट को आप कहते हैं कि दैट इज द टर्नओवर रेट। सिंपल वेज टू डिस्क्राइब इट आर हाउ लॉन्ग एम्प्लॉयज टेंड टू स्टे और द रेट ऑफ ट्रैफिक थ्रू द रिवॉल्विंग डोर, कि आपके पास एम्प्लॉयज ऑन एवरेज कितना अरसा रहते हैं या आपके एम्प्लॉयज एग्जिट करके ऑन एवरेज कितने अरसे के बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं। सो बेसिकली एक परसेंटेज आप निकालते हैं कि जी टर्नओवर परसेंटेज एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ एन एम्प्लॉयर इज सेट टू हैव a high turnover relative to its competitors, it means that employees of that company have a shorter average tenure than those of other companies in the same industry. So shorter जब आप बात करते हैं कि जी एक टाइम फ्रेम है आपका आपके साथ एम्प्लॉयज का, and that is only because of there is high turnover rate relative to your competitors. तो definitely आप मार्केट में there is survival of the fittest. There are almost no more monopolies. So whatever you do, that has an impact on the other organization, and same is true for you as well. So in order to beat your competitors, in order to stay ahead, in order to become a leader in the market, this is really very important that we need to focus on keeping our employees. Now, high turnover may be harmful to a company's productivity if skilled workers are often leaving. अगर आपके जो लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट एम्प्लॉयज हैं, एंड हम कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तो आपके जो बेस्ट ह्यूमन ब्रेन्स हैं जब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो इट मीन्स डैट कि जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर एक एक्सट्रीमली डैमेजिंग इम्पैक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, नंबर वन में बात करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं आपकी 4 P's ऑफ मार्केटिंग की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो इन चारों एरियाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है व्हेन योर बेस्ट एम्प्लॉयज लीव। देन ऑफ कोर्स आपकी जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, तमाम 4 P's को कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन उनके ऊपर वर्किंग कर रहा है। सो इट इज ओनली द ह्यूमन रिसोर्स which is working on those 4 P's, which is working on those managerial functions. So पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज को रन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR, और वही HR जो तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हाई क्वालिटी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। व्हेन दे लीव, ऑफ कोर्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन बिग ट्रबल। नाउ लेट्स डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन, the extent to which an employee is committed to his work and his organization. Now, एक एम्प्लॉय जो है उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस हद तक उसकी कमिटमेंट है, उसका काम के साथ कितनी कमिटमेंट है। तो दो चीज़ें हैं कि एम्प्लॉय की काम के साथ कितनी कमिटमेंट है, एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितनी कमिटमेंट है, एंड देन द एक्सटेंट टू विच दिस कमिटमेंट इम्पैक्ट्स
his performance and intent to stay with the organization। और जितनी ज़्यादा वो strong commitment होगी एम्प्लॉय की अपने काम के साथ, जितनी ज़्यादा strong commitment होगी एम्प्लॉय की organization के साथ, उसका एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन को उसमें स्टे करने का कितना उसकी मोटिवेशन है, वो कितना चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे। और जितनी ज़्यादा कमिटमेंट वीक होगी एम्प्लॉय की काम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उतनी ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो एम्प्लॉय जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए। Now talking about HR retention, HR retention is the total of the behavior employees espouse in the organization, which primarily should be characterized by, like for example, belief in the organization. Now सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी बिलीफ है, कितना यकीन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिन चीज़ों पे हमारा जितना यकीन होता है उतना ही गहरा हमारा उन चीज़ों के साथ ताल्लुक होता है। एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे जितना ज़्यादा आपको यकीन होगा, जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, उतना ही आपकी बिलीफ स्ट्रांग होगी। और जितनी बिलीफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रांग होगी, ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ स्ट्रांग होगी, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और जितना ही बिलीफ वीक होगी, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं छोड़ने के। ड्राइव टू वर्क एंड मेक थिंग्स बेटर, जो एम्प्लॉई है उसको काम करने का और चीज़ों को इम्प्रूव करने का जो है उसकी कितनी मोटिवेशन है, कि एम्प्लॉयज़ की जो एक विलिंगनेस है, उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कितना हाई है। जितना विलिंगनेस और इंटरेस्ट लेवल हाई होगा, एम्प्लॉई उतना ही ज़्यादा अपने काम में इंटरेस्ट लेगा और चीज़ों की क्वालिटी की तरफ फोकस करेगा। तो जो एम्प्लॉयज़ क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में दे आर हाईली सेंसिटिव, तो मोस्टली दे वांट टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर हाईली लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन इन मोस्ट केसेस। रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर अदर्स। नाउ जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की, तो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हैं कि एक हाईली एथिकल बिहेवियर हो, जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए। नाउ एम्प्लॉई की वहाँ पे जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेग्रिटी स्ट्रांग होगी, और जितने बाकी उसके कोलीग्स, उसके जूनियर्स, सीनियर्स उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर उस एम्प्लॉय को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करे। डिज़ायर टू लर्न न्यू स्किल्स। Now this is really very important कि employees they have different desires. Like for example कि जिन लोगों को नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में of course they are more involved, उनका एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी like for example फैमिली की तरह रन करने की बात करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एसेट्स की हिफाजत उसी तरह करते हैं जिस तरह के अपने घर में एसेट्स की सेफ्टी की बात करते हैं। तो एक डिज़ायर जो है लर्न करने की, और ये डिज़ायर कैसे आएगी, ऑफ कोर्स उस एनवायरनमेंट से आएगी, उस मोटिवेशन से आएगी जो कोलीग, जूनियर, सीनियर और एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिल रहा है। तो जब हम रिटेंशन की बात करते हैं ओवरऑल, तो बिलीफ, ड्राइव, रिस्पेक्ट एंड डिज़ायर, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई टर्नओवर टू हाई रिटेंशन। Here today, here tomorrow, very beautiful saying कि आज भी आप यहाँ हैं, कल भी आप यहाँ पे हैं। Transforming your workforce from high turnover to high retention, कि आप अपनी वर्कफोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो हाई टर्नओवर से मूव करे टुवर्ड्स हाई रिटेंशन, कि एम्प्लॉइज वंस दे ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो दे डोंट नेवर थिंक टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. So this is really very important. So to do this, we need first to look at the main reasons for why do people stay. Of course, हमें उन root causes की अब बात करने हम जा रहे हैं कि जिन root causes की वजह से, जिन factors की वजह से employees जो हैं वो किसी भी organization में stay करना चाहते हैं. So let's have a look on that factors. The first most important factor is retention is
commitment based. Now, what do we mean by retention is commitment based? Like, we have a rational commitment. Now, rational commitment is employees believe they will personally and professionally benefit from the organization. तो एक लॉजिक होता है एम्प्लॉयज़ के पास. लाइक फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ को एक पर्सनल बेनिफिट है, एक प्रोफेशनल बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन से. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो एम्प्लॉयज़ दे प्रेफर एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपकी लर्निंग नहीं है, जहाँ कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है. तो एम्प्लॉयज़ दे स्टार्ट गेटिंग बोर, दे स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट. उनकी जो कमिटमेंट है जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो बड़ी हाई होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ट्रेनिंग का माहौल नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली वो उनके मोटिवेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है. एंड देन प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी जो प्रमोशन है वहाँ पे आया, आपको अपनी प्रमोशन के बारे में एक नज़र आ रहा है कि आपकी प्रमोशन जो है वो होने के क्या चांसेस हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें तो जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन हो सकती है, बजट में आगे आपकी प्रमोशन की पोजीशन वेकेंट है या नहीं है. सो थिंग्स लाइक दैट. सो आपके पर्सनल बेनिफिट्स क्या हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, आपका एटीट्यूड बिहेवियर कैसे डेवलप हो रहा है, और एक प्रोफेशनल लेवल पे कि आपकी क्या एक कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में, दुनिया में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है. सो दीज आर द रैशनल कमिटमेंट्स that help an employee to stay with the organization. So it makes sense for them to stay with the organization. तो of course जब आप पर्सनल बेनिफिट्स ले रहे हैं, आप प्रोफेशनल बेनिफिट्स ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये एक सेंस बनता है, एक लॉजिक बनती है कि डेफिनेटली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट है और इससे मैं बेनिफिट्स भी ले रहा हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, तो दैट मेक सेंस. और ऑन द अदर साइड अगर आपको ये लगे कि आपकी जो कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, आपकी कोई जो प्रोफेशनल बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली आपकी जो कमिटमेंट है वो वीक होना शुरू हो जाती है और देयर आर मोर चांसेस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ रैशनल कमिटमेंट ड्रिवन बाय रिम्यूनरेशन. Now let's have a brief look at those factors जिसकी वजह से आपकी रैशनल कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है या वीक हो सकती है. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज रिम्यूनरेशन, कि एम्प्लॉय जो है वहाँ से क्या बेनिफिट्स ले रहा है, फॉर एग्जांपल उसको क्या सैलरी मिल रही है. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी मोटिवेशन में, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इक्विटी थ्योरी. Now equity theory says that कि एम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा उनकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है, ज़्यादा उनको मोटिवेशन होती है, उनका दिल करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने का, काम करने का, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्म करने का, जब उनकी जो इनपुट आउटपुट रेशो जो है वो इक्वल होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इक्विटी थ्योरी में जैसे हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपनी इनपुट आउटपुट रेशो को अपने कंपैटिटर के एम्प्लॉय जो उनके ग्रेड पे काम कर रहा है उसकी इनपुट आउटपुट रेशो के साथ कंपेयर करते हैं. जब ये दोनों अपनी और दूसरे एम्प्लॉय जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन अपनी और उसकी इनपुट आउटपुट रेशो को जब आप कंपेयर करते हैं तो अगर आपको उसमें एक इनइक्विटी नजर आती है, अगर आपको ये लगता है कि जो दूसरा एम्प्लॉय है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सेम ग्रेड में सेम लेवल में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, उसका इनपुट भी वही है जो आपका इनपुट है, लेकिन उसके जो आउटपुट है उसका जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली फिर इनइक्विटी क्रिएट होती है और आपकी कमिटमेंट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ to like and that help them to stay with the organization need to make the remuneration highly competitive. Incentives, of course organizations it is their responsibility that they should be providing incentives as per the market requirements, as per the
their major competitors. So they need to provide adequate incentives to their employees if they want to retain their employees. Career growth opportunities. You know, one day somebody came to me, उसने मुझसे पूछा कि like for example एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सैलरी जो है it is like about 35,000 rupees per month, और उसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जहां पे सैलरी इज अबाउट 22,000 लेकिन वहां कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं. तो ही आस्क्ड माय ओपिनियन. आई सेड दैट career growth opportunity is more important than monthly salary. So of course हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया. कुछ मैंने फैक्ट्स भी मार्केट से गैदर किए, कुछ और लोगों से मशवरा किया, और जो मुझसे मशवरा लेने आए थे उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन ली, और उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करके ये डिसीजन किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम सैलरी है बट देयर आर कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वहां पे ज्वाइन करना बेहतर है. And you know what happened? After like 4-5 years, now I know the same person. He has done a wonderful job over there, and he is at a high middle income level and high middle income in the managerial position in that particular organization. So एक कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को जरूर आप फोकस करें. और जब हम किसी भी एम्प्लॉय की कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं तो कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी, एम्प्लॉयज को अनसर्टन होगा, उनको क्लियर नहीं होगा कि आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, आगे हम कैसे ग्रो करेंगे, आगे नेक्स्ट पोजीशन मुझे कब मिलेगी, तो अगर चीजें अनक्लियर होंगी तो डेफिनेटली उनकी जो कमिटमेंट है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है. हेल्थ बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज दे टॉक अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स के आपकी जो हेल्थ है उसके लिए लाइक मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की सिर्फ बात नहीं हो रही, एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी भी बात हो रही है कि आया एम्प्लॉय के हेल्थ बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन दे रही है या नहीं दे रही, और कहाँ तक मेडिकल कवरेज दे रही है, फिर उसके डिपेंडेंट्स के लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और नॉर्मली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो डेफिनेटली ऑन एवरेज जब हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, एंड देन उनके पेरेंट्स हैं, सो दैट मेक्स अ फैमिली साइज ऑफ 8. नाउ 8 मेंबर्स हैं. नॉर्मली जो देखा गया कि फैमिली में 1 या 2 लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो बाकी 6 आर डिपेंडेंट. उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी टेक केयर करना, फिर ऑफ कोर्स आपका जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस. तो हेल्थ बेनिफिट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो मेडिकल या हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करे, और हाईली कंपेटिटिव होने चाहिए. एंड कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने कंपेटिटर से बेहतर हेल्थ बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को दें इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन देयर कमिटमेंट टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन. वर्क एनवायरनमेंट, आई ऑलवेज से वन थिंग, आई कैन नॉट मोटिवेट पीपल, आई कैन नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज. You know how we can motivate people, how we can motivate employees? Do you have any idea? Okay, in order to motivate employees in an organization, what we need to do is we need to design a motivating environment. And once we design that motivating environment, people get motivated automatically. तो आप चाहते हैं कि लोग मोटिवेट हों, तो आप एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें. उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट. यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर. यू नीड टू डू दैट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. यू नीड टू बिकम अ हेल्पिंग हैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो बी फ्लेक्सिबल, and give space, and there should be no fear in the minds of employees and things like that. So once you do and develop that positive work environment, people, they never think to leave you. लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे हमने पहले डिस्कस की, उसके साथ साथ लर्निंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. क्या सिर्फ ये तो नहीं है कि आपकी प्रमोशन तो हो रही है, आपका कैरियर ग्रो कर रहा है, लेकिन जो लर्निंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहीं यहाँ पे स्टे तो नहीं कर गए. तो
एक लर्निंग होनी चाहिए, एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती हैं डेफिनेटली कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने, ठीक है, यू आर वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट स्किल्स डू यू हैव, आपने आज तक क्या क्या लर्न किया, आप अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, आपकी कॉम्पिटेंसी कैसे स्ट्रांग हुई है। एंड इफ यू कीप क्वाइट एंड यू हैव नथिंग टू से, इट मीन्स दैट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नहीं थी या थी और आपने अवेल नहीं की। सो in order to increase and strengthen the commitment of employees कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस को जब टाइम देते हैं तो उनके घर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और जब घर को ज़्यादा टाइम देते हैं तो ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए डेफिनेटली आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको बहुत स्ट्रगल्स करनी है, आपको अपना बेस्ट जो पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना है। तो डेफिनेटली जब आप ये करते हैं तो आपकी बहुत सी एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली आप उसको इनपुट करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी। नाउ ऑन द अदर साइड आप जब अपने घर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए रिलेशनशिप्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको वीक नहीं करना चाहते, उनको डैमेज नहीं करना चाहते, हम अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये एक बैलेंस जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, जो आपको डिसिप्लिन के तहत, लाइक फॉर एग्जांपल आपके फिक्स ऑफिस टाइमिंग्स हैं और फिक्स टाइमिंग्स पे आप ऑफिस आ रहे हैं, फिक्स टाइमिंग्स पे आप घर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा बेहतर तरह से टाइम दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस दे आर मोर कंफर्टेबल एंड दे आर मोर सेटिस्फाइड, and this is what is required to strengthen commitment. And of course ये जब हम सारे factors देखें हमने, remuneration, incentives, career growth opportunities, health benefits, work environment, learning and development opportunities and work life balance. So once कोई भी organization, whether public sector or private sector, once they do focus on these areas, they can ensure that they keep and they retain the best employees with them. Another area is retention is commitment based. जब हम बात करते हैं तो we talk about emotional commitment. Now believing in, valuing or enjoying their day-to-day work, teams, managers or organizations. Now employee के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा है तो वहाँ पे वो enjoy करे, उसको value दी जाए, उसको जो लाइक फॉर एग्जांपल उसके जो टीम है, मैनेजर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के साथ उसकी एक फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, बिकॉज दे कैन मेक अ लिंक बिटवीन देयर रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू सिस्टम एंड दे एंजॉय और फाइंड फुलफिलमेंट इन द वर्क। सो एम्प्लॉयज को बर्डन फील ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर देखा गया कि जब वीकडेज होते हैं तो सुबह हमारी आंख ज़रा मुश्किल से खुलती है और बड़ा हम सुबह कभी बेड पे करवटें ले रहे हैं और बड़ा लाइक हमें एक मुश्किल सी हो रही होती है सुबह उठने में, मोस्टली जो देखा गया। तो जो लोग व्हेन दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर एक्साइटेड एंड दे आर हैप्पी एंड दे आर वेटिंग कि सुबह हो, वो उठें, नमाज पढ़ें और टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचे। सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। और जिन एम्प्लॉयज की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो एम्प्लॉयज उतना ही बेहतर परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ स्टे करना चाहता है, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, उसके साथ साथ वो एम्प्लॉय आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि आप उसकी इमोशनल कमिटमेंट का ख्याल करें, उसकी
उसकी एहसासात का, उसकी फीलिंग्स का ख्याल करें, उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल करें, उसको लाइक फॉर एग्जांपल उसकी रिलेशनशिप को कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का ख्याल करें, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट का ख्याल करें। तो जब हम इन तमाम चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली रिटेंशन इज़ वन बेनिफिट एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट हियर। इमोशनल कमिटमेंट ड्रिवन बाय एंजॉयमेंट ऑफ वंस जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो काम करते हैं तो उसको आप इंजॉय करते हैं नहीं। तो अगर आप अपने काम को इंजॉय करते हैं तो इट मीन्स दैट कि योर इमोशनल कमिटमेंट इज हाई। रोल क्लैरिटी, आपका रोल क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में आपका क्या रोल है, आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके एम्प्लॉयर को। अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन वंस जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आई थिंक इन चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि एक एम्प्लॉय की जो जॉब है, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ क्या लिंकेज है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एम्प्लॉय की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसका जो लिंक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ, कि आप अगर बेहतर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ वो कैसे लिंक करती है, ऑर्गेनाइजेशनल जो टारगेट्स हैं उसके साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रिलेट करती है। एंड वंस यू डू दैट, वंस यू रिलेट दैट, आई कैन अश्योर यू दैट एम्प्लॉय विल फील मोर ऑनर्ड, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेट होता है कि ओके लाइक okay, I'm doing this thing and this is contributing in the overall target achievement of an organization। तो वो जब फीलिंग्स उसको होती हैं तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पेक्ट और एक मोटिवेशन आ जाती है और डेफिनेटली द रिजल्ट इज इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। बिलीफ इन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, हर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को, एथिक्स को, बाउंड्रीज को फॉलो किया जाएगा, अवेयरनेस दी जाएगी, उतना ही ऑफ कोर्स वी कैन इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एंड देन रिस्पेक्ट मैनेजर, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पहले बात की कि जब आप रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, जब आप टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो एक रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है। इमोशनल कमिटमेंट ड्राइव्स डिस्क्रिशनरी एफर्ट। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिशनरी एफर्ट? ओके, एक एम्प्लॉइज को कहा जाता है कि आपकी फॉर एग्जांपल 9 to 5 वर्किंग है और आपका बॉस आपको काम देके अपने ऑफिस में चला जाता है। अब आपको लाइक फॉर एग्जांपल 3:30 PM पे आपका काम कंप्लीट हो गया जो आपको दिया जा चुका है आपने। अब नाउ वो जो आपके पास 1.5 आवर्स बच गया है उसमें आप क्या करेंगे? लाइक उसको आप किसी जाती बेनिफिट के लिए यूज करने का सोचेंगे, या आप फारिग बैठे रहेंगे, या आप मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, SMS करना शुरू कर देंगे, आप करेंगे क्या? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिन एम्प्लॉयज की इमोशनल कमिटमेंट स्ट्रांग होती है उनका जो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर है, उनकी जो डिस्क्रिशनरी एफर्ट है वो बहुत हाई हो जाती है। तो वो जो एम्प्लॉयज जिनकी डिस्क्रिशनरी बिहेवियर एक उनका होता है, तो वो जो 1.5 घंटे की हमने बात की, तो 1.5 आवर्स वो मजीद क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मजीद अपने आप को एक्टिवेट करेंगे और मजीद कंट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज देने के लिए जरूरी है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप द डिस्क्रिशनरी बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिशनरी बिहेवियर होगा एम्प्लॉइज का, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी और उतनी ज्यादा बेहतर चांसेस हैं कि वो मार्केट में दे कैन बिकम अ लीडर। नाउ टॉकिंग अबाउट रोल बेस्ड लेवल्स ऑफ रिटेंशन, there are 5 work related roles that an employee can assume, and these are: the first is job holder role. Employees come to work and do the job that is listed in their job description. Straight, very simple. Employee को काम पे आता है, जो उसके
काम 1 2 3 4 उसने करने हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, उसने वो परफॉर्म किए एंड दैट्स इट. द नेक्स्ट इज द टीम मेंबर रोल. Employees go above and beyond to help members of their team work toward common goals. तो यहाँ पे जॉब होल्डर रोल से एक बेहतर रोल हमें नजर आ रहा है टीम मेंबर रोल का, कि एम्प्लॉय जो है ना सिर्फ ये कि अपने काम को फोकस करता है, अपने काम में क्वालिटी लेके आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड बनता है और जो कॉमन गोल्स हैं उसके लिए वो एफर्ट्स करता है और एम्प्लॉयज के साथ मिलके इम्प्रूवमेंट की बात करता है और कोशिश करता है कि मिलके एक बेहतर एक्टिविटी की जाए और बेहतर डिलीवर किया जाए काम को. एंटरप्रेन्योर रोल. Employees come up with new ideas and processes and try to get those ideas implemented. Very important कि एम्प्लॉय जो है वो एक न्यू आइडियाज और प्रोसेस जो है वो लेके आता है, उसके ब्रेन में होता है कि ओके फाइन, सो व्हाई नॉट डू समथिंग न्यू, व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू एंड देन व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट दोज न्यू आइडियाज. तो ऐसे एम्प्लॉयज को हम कहते हैं कि दे हैव ए एंटरप्रेन्योर रोल. सो दीज टाइप ऑफ employees, they are highly creative and innovative, you know. So this is really very important to know that if we keep on doing same things every day, we will keep on getting same results every time. So in order to do the best in the world, in order to contribute the best, this is really very important that we need to think about creativity and innovation. We need to bring improvements the way we work. We need to improvements the way we think. This is really very important. So people who are creative, and people who are innovative, so they are always thinking that कि जी हम अपने working methods को कैसे improve करें, बेहतर करें, quality लेके आएं. And of course the result is improvement in individual, group and organizational performance. Then is the career role. Employees do things to enhance their career in the organization. They learn, they adopt new skills and more. So here employee is focusing on career building. कि employee जो है अपने career को enhance करने के लिए मुख्तलिफ तरह की activities करता है. Like for example, the most important thing is कि employee कोशिश करता है कि जो उसकी जो qualification है, उसका जो experience है, वो right direction में होना चाहिए. जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कैरियर प्लानिंग की, तो एम्प्लॉय अपनी एक कैरियर प्लानिंग करता है कि जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, दैट शुड मैच विद एग्जिस्टिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जितना ज़्यादा वो मैच करके उसको चलेगा वो इसी तरह अपने उस कैरियर में एक्सेल करने की तरफ मूव करेगा. एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रोल. एम्प्लॉय डू थिंग्स दैट promote and help the company even it's not part of their jobs or their team's duties. Now this organization member role is really wonderful. Now irrespective के आपको काम कहा गया या नहीं कहा गया, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया कि 1 2 3 4 5 आपने काम करने हैं, तो ये 5 तो काम आपने करने हैं. उसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रोल की, तो ये वो एम्प्लॉयज हैं कि इन 5 काम के अलावा भी वो कुछ सोचते हैं, कुछ और भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि प्रोडक्ट में, सर्विस में इंप्रूवमेंट लाई जाए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज किया जाए. तो वो अपनी जो जॉब का रोल है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे आगे की बात करते हैं, उससे आगे का सोचते हैं. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो when we talk about role-based levels of retention, these are the 5 roles, and we have discussed all these with examples. Now organizations with high levels of employee retention. Now 38% higher customer satisfaction scores, 22% higher productivity, 27% higher profits. So this is only possible to those organizations with a higher level of employee retention. Very simple. So it means that कि आप अपनी एम्प्लॉयज को, बेस्ट एम्प्लॉयज को रिटेन करें, तो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे. ऑन द अदर साइड, if you are unable to retain your best employees, so you know that what may happen,
the negative side. So of course you want to remain in the market, you want to be competitive in the market, and in order to do that, of course you need to focus on employee retention. So employee engagement derives business results. So you need to engage your employees. You know how to engage your employees. You need to respect their feelings. You need to value them. You need to respect them. You need to respect their integrity. You need to respect their ego. You need to give them a sense of ownership. So in this way you can develop and strengthen the employee engagement, and of course that derives wonderful business results. Now, hire the right people. How do you know what the right person looks like? So let's have a quick discussion on what are the best hiring practices. Before do that, let's discuss that why good people in different organizations quit. Now these are the reasons why good people quit. Poor match between the person and the job. कि जो एक एम्प्लॉई है और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका मैच नहीं है. एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड और है, उनका बिहेवियर और है, उनका ओवरऑल एक एप्टीट्यूड डिफरेंट है, और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, दे प्रेफर टू डू दैट on the table job, like they love to make reports, and they just want to sit and work on the table. There are other employees who just like moving around, who want to go from one place to the other. So if you give those employees like different responsibilities, कि जो employee आपका like for example ट्रैवल करने को बहुत पसंद कर रहा है, आप उसको एक टेबल वर्क दे देते हैं, और जो टेबल वर्क पसंद कर रहा है आप उसको ट्रैवलिंग पे भेज देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल उसको कह सकते हैं कि ओके फाइन, वी हैव डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेस, तो आप जाके उनको मॉनिटर करें, आप उनको विजिट करें, उनके बारे में रिपोर्ट बनाएं. तो डेफिनेटली ये मैच नहीं करेगा उस पर्सन के साथ उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो आपने क्या करना है कि यू नीड टू मैच द जॉब विद द पर्सन. कि जो एम्प्लॉइज टेबल वर्क को प्रेफर कर रहे हैं आप उनको टेबल वर्क पे फोकस करें, और जो एम्प्लॉइज लाइक फॉर एग्जांपल मूविंग अराउंड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आप उनको मार्केटिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप उनको ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको असाइन कर सकते हैं जिसके अंदर उनकी ज़्यादा मूवमेंट्स हों. पुअर फिट विद द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कल्चर. समटाइम व्हाट हैपन्स दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है या जो कल्चर है वो आप उसके साथ फिट नहीं होते. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत डायनामिक कल्चर है, बहुत शार्प कल्चर है, पीपल आर हाईली डायनामिक, आपका जो ही काम आता है दे हैव ए कल्चर के इमीडिएटली उसको आपने विद इन मिनट्स आपने उसके ऊपर एक्शन लेना है. तो अगर आपकी नेचर में, आपके एप्टीट्यूड में इस तरह की चीज़ नहीं है तो एक पुअर फिट हो सकती है जिसकी वजह से आप को प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देन पुअर अलाइनमेंट बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. there must be an alignment between pay and performance. जब तक पे फॉर परफॉर्मेंस नहीं होगी we cannot ensure improved performance. अक्सर ये देखा गया कि नए एम्प्लॉयज जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स उनका मोटिवेशन लेवल पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. मैं ये नहीं कह रहा कि सबका, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ का ये देखा गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका अगर मोटिवेशनल लेवल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है, जिसकी एक रूट कॉज ये भी हो सकती है कि देयर इज नो पे फॉर परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है और एम्प्लॉय की जो पे है उन दोनों की अलाइनमेंट नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अब हम जब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो यहाँ पे एक जो चीज़ हमें मेजर कंसर्न है कि जो हमारी पब्लिक सर्वेंट्स की जो सैलरीज हैं, ऑफ कोर्स इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट मैच विद द ग्राउंड रियलिटी इन पाकिस्तान. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो आपकी हाउस रेंट है जो आपको मिलता है, या हाउस रेंट अगर सब्सिडी मिलती है तो इज इट पॉसिबल कि उस हाउस रेंट में आप अपने ऑफिस के करीब एक पोर्शन किराए पे ले सकें?
So in most cases, not possible. What about the medical benefits? What about the transportation, conveyance allowance? What about the basic salary? What about the yearly annual financial increment? तो तमाम चीजें जो हमें most cases में हम देखते हैं कि वो unrealistic हमें लग रही हैं कि एक तरफ आप इन्फ्लेशन को देखें और दूसरी तरफ आप देखें कि हमारी सैलरी जो है उसकी किस तरह से वो उसको रेज मिल रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ मिसमैच एंड दैट इज द रीजन व्हाई गुड पीपल क्विट जब हम बात करते हैं. एंड देन पुअर कनेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल, देयर को-वर्कर्स एंड द सुपरवाइजर. देयर आर कम्युनिकेशन बैरियर्स, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स का अपने कोर वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन, पुअर रिलेशंस आर देयर. सो जब आपके आपस के रिलेशन स्ट्रांग नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप जाहिर बात है मोटिवेशन नहीं होगी, और जब मोटिवेशन नहीं होगी तो इरिटेशन होगी, और जब इरिटेशन होगी तो ऑफ कोर्स पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. पुअर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट. ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करे, उनको कीप करे, उनको मोटिवेट करिए, वहां पे ग्रोथ और एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. अगर एम्प्लॉयज को ये एहसास हो कि आगे ग्रो करने की, एडवांस करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप खुद मुझे बताएं तो कैसे मुमकिन है कि उन एम्प्लॉयज को आप अपने पास रिटेन कर सकें. तो द मोमेंट दे गेट एनी बेटर ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, दे लीव यू. सो इससे पहले कि वो आपको छोड़ जाएं, इट इज लाइक अ प्रोएक्टिव मेजर कि आप इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए आप कोशिश करें कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको आप कीप करें, लेकिन उनको कीप करने के लिए तमाम चीजों को आपको पहले से करेक्ट करना है. ना जब हम हायरिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो देयर इज अ फेलियर टू डिटेक्ट मोटिवेशनल फिट विद जॉब. तो अक्सर ये देखा गया कि हायरिंग के दौरान जो है वो जो एक पर्सन की मोटिवेशन है और जो उसकी जॉब है उसको डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादातर केसेस में देखा गया कि देयर इज अ फेलियर. एप्लीकेंट्स एग्जैजरेट टू गेट ए जॉब. ऑन दी अदर साइड ये देखा गया कि जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं वो एग्जैजरेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक फॉर एग्जांपल एक चीज को जरूरत से ज्यादा लाइक बयान करते हैं, एक बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक काम इतना किया है तो आप उसको जॉब इंटरव्यू में इतना करके अगर प्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स कि जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं वो एग्जैजरेट करते हैं. Most hiring decisions made by intuition during the first few minutes of the interview. Again a big mistake here कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसको बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है इन मोस्ट ऑफ द जॉब इंटरव्यूज कि शुरू के चंद मिनट में जॉब एप्लीकेंट ने जिस तरह का इंप्रेशन दिया है तो एक आपकी इंट्यूशन, आपकी एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है उस जॉब एप्लीकेंट के बारे में. 2 out of 3 hires proved to be a bad fit within the first year. 3 में से जो 2 हायरिंग्स हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको पता चल जाता है कि आपने क्या ब्लंडर किया, आपने क्या गलती की है. सो इट मीन्स दैट कि देयर आर रियली सेंसिटिव important issues when we talk about the typical hiring practices in Pakistan. Most interviewers not properly trained. हर वक्त बात की जाती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. एप्लीकेंट्स को फोकस किया जाता है, एप्लीकेंट्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं, अपने आप को स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं. बट ऑन द अदर साइड जो इंटरव्यूअर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को इन मोस्ट केसेस उनको एड्रेस नहीं किया जाता. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यूअर को बाकायदा ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाए. इंटरव्यूअर को पता हो कि उसने क्या चीज जज करनी है, कैसे जज करनी है. Excellent employees placed in the wrong jobs grow frustrated when unable to utilize their strengths. तो अगर आप एक एम्प्लॉई जिसकी बेस्ट क्वालिफिकेशन है, बेस्ट एक्सपीरियंस है और आप उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट कर देते हैं, इररेलेवेंट वाली जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसको दे देते हैं, तो वो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और वो अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सलेंट एम्प्लॉयज को रेलेवेंट जॉब्स में लेके आए, क्योंकि अगर आप अपने एक्सलेंट एम्प्लॉयज को, एक्सलेंट जॉब एप्लीकेंट्स को अगर राइट मैच नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी एंड ऑफ कोर्स ये फिर आगे जाके रिजल्ट इसका ये निकलता है कि एम्प्लॉयज दे क्विट. नाउ key findings.
Money may attract people to the front door, but something else is needed to keep them from going out the back. Now, what is that something else is needed? What comes in your mind? Think about it. This is really very important question. Keep finding. Money may attract people to the front door, but something else is needed to keep them from going out the back. Now, most of the people, when we ask them that what is important to them, mostly they say that money is really very important. But research has proved that in majority of the cases, non-financial rewards are really very important. Now, what are those non-financial rewards that help an organization to retain their best asset, and that is human resource? तो वो क्या क्या हो सकता है? Like for example, top management support. कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट जो है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, आपको किस तरह की वहाँ पे मॉरल इंकरेजमेंट दी जा रही है. फॉर एग्जांपल अनदर कंसिडरेशन इज, जब हम नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात करते हैं कि जो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है वो कितना एथिकल है, उसके अंदर एथिक्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई हरासमेंट के इश्यूज तो नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन किस तरह का है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है कि नहीं. क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जब एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अरसे तक परफॉर्म कर लेता है, उसके बाद उसकी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है कि मुझे भी वैल्यू दी जाए, मुझ पर ट्रस्ट किया जाए. तो किसी भी एम्प्लॉई को वैल्यू देने के लिए, उस पर ट्रस्ट करने के लिए, उसको लॉयल करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू डेलीगेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू योर एम्प्लॉइज. और रिसर्च हैज आल्सो प्रूव्ड दैट इन ऑर्डर टू डिलीवर the best quality, in order to develop a sustainable competitive advantage, it is required that you need to make your employees loyal. और लॉयल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करें, उनको आप अलाउ करें कि वो खुद से डिसीजन लें, और हर चीज़ के लिए वो अपनी टॉप मैनेजमेंट की तरफ ना देखें कि भाई आप लोग मुझे कुछ डिसीजन करेंगे तो फिर मैं उस पर अमल करूंगा. तो एम्प्लॉय को खुद डिसीजन मेकर भी आप बनाएं, क्योंकि आपके ऊपर से भी, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर से भी एक लोड कम होगा, वर्कलोड. और टॉप मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर फोकस कर सकती है, और डिसीजन मेकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डेलीगेट किया जा सकता है मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट उनमें से कुछ हद तक डेलीगेट कर सकती है लो मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. So training and development of employee is a wonderful non-financial reward. कि जिन employees में, जिन organization में employees को बेस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई की जो रिटेंशन है वहाँ ज़्यादा देखने में आई एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे एम्प्लॉई की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया गया. क्योंकि यकीनी बात है कि जब आप अपने एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आप डेवलप कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉई की जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रैशनल कमिटमेंट है, इमोशनल कमिटमेंट है, वो इंक्रीज हो रही है, और उसका रिजल्ट ये है कि एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा लॉयल हो रहा है, और एट द सेम टाइम एम्प्लॉई की एक पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रही है. तो ये तमाम चीज़ें मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ कोर्स ओवरऑल इंक्रीज करती हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को. उसके अलावा डेफिनेटली आपने एम्प्लॉय को एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट देना है. लाइक फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को आपने इंक्रीज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के गेट टुगेदर्स होने चाहिए, एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें.
लाइक फॉर एग्जांपल, और कोशिश करनी चाहिए एम्प्लॉयर को कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, बजाय ये कि आप उसको छोड़ दें और वो जो शुरू में जो चीज़ कंट्रोलेबल है बाद में इन सम केसेस वो अनकंट्रोलेबल बन जाती है। उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी है कि आप एक फ्लेक्सिबिलिटी का कल्चर आप उसके अंदर प्रमोट करें कि एम्प्लॉयज़ को लाइक फॉर एग्जांपल दे शुड हैव नो फियर कि वो कोई भी फीडबैक जो है अपने बॉसेस को अपने कोलीग्स को दे सकें, ताकि एक डायरेक्ट फीडबैक मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम प्रोएक्टिव। तो इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Now, when we talk about employee retention strategy, you need to provide a clear sense of direction and purpose. कि आप अपने employee को एक clear direction और purpose बताएं, कि आप उनको बताएं कि हम like for example हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट आर आवर टारगेट्स। तो उनको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस बताएं, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज क्लियर होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो दे विल स्टे विद योर ऑर्गेनाइजेशन, और जब अनक्लियर होंगे तो डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से एम्प्लॉय को लूज आप कर सकते हैं। Reward and recognition programs are really very important. So experts of HR, they strongly recommend that you need to provide financial and non-financial rewards and recognition programs आप run करें अपनी organization में, और आप welfare programs भी run कर सकते हैं। Like for example कि employee की तो आप take care कर ही रहे हैं, उसकी employee की take care के लिए भी आप programs शुरू कर सकते हैं। Become a better leader by showing me you care. Now this is a message to all the employers and all the bosses that you can become a better leader by showing me you care. So one day somebody asked me, who is the best leader? I said, the one who is caring. Very simple. So the person who cares you, a person who is really sensitive, that is the real leader. Now keep the doorways and pathways of communication open. Try to minimize and reduce the communication barriers. Try to get the direct feedback from your employees. So try that there should be no constraints and no hurdles, and there should be like no fear in the minds of employees, and they are willing and they are ready and they are highly motivated to share their experiences and give feedback to the low management and top management. Create a charged work environment that energizes and engages the workforce. Very important. Try to give challenging, tasks, specific targets to your employees. और जितने ज़्यादा आप उनको चैलेंजिंग टास्क देंगे, उनको स्पेसिफिक आप टारगेट्स देंगे, उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉय का फोकस इंक्रीज होगा, उतने ही ज़्यादा उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा उनका स्टेमिना इंक्रीज होगा, उतनी ही ज़्यादा उनकी लर्निंग होगी। एंड दिस इज ऑल मूविंग इन वन डायरेक्शन, एंड दैट इज HR retention. Now career opportunities and development plans are really very important in order to retain your employees. Now you should communicate what are the growth opportunities and what are the development plans. आप आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपके क्या plans हैं और उसके अंदर employees का क्या role है. Develop your valuable staff. जैसे हमने पहले बात की कि you need to develop your staff, and development is an ongoing process. Help people move up or they will move out. Very simple final message of today's presentation. Help people move up or they will move out. आप लोगों को ऊपर लेके आएं, आप लोगों को अपग्रेड करें, आप लोगों के कैरियर्स को ग्रो करें, आप उनकी स्किल्स को इन्हांस करें, आप उनकी मोटिवेशन को इन्हांस करें, आप उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करें, आप उनका बेस्ट पोटेंशियल बाहर लेके आएं. और जब आप ये करेंगे, they will definitely stay with you, and if you don't, they will leave you. Conclusion is, for efficient and effective
human resource planning and human resource retention, we need to build a sense of strong employee ownership. So what is required? A sense of strong employee ownership. Or employee ownership kab aayegi? When we are able to do that most efficient and effective human resource planning, and then of course a wonderful HR retention strategy जब हम adopt करते हैं तो we can do that. In nutshell, we can say that in development planning and administration, it is the major responsibility of the decision makers, of the employer, that should take necessary measures to improve the human resource planning process, to improve the HR retention process. So in this way, they are better than their competitors, and they are more able to bring positive improvements in their development planning and administration. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.